forgot to mention about Rohan's father. He lives in Nigeria. But from there, he was monitoring how this function will take place, how it will be when the day comes nearer and nearer. He started calling me from there, confirming whether all of us are attending or not. I think Rohan has a supportive father. This is what is required in this field. Parents should support the boy, and I think Rohan has ideal father and mother who are supporting Rohan. I think this is the blessings of parents is very important. So I would request. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I must say that I'm very thankful to Jayant Patil ji to have found the time to come and grace this function. His encouragement of Rohan has been so staunch that I have no words to describe that. And also Mrs. Patil, I am very thankful to you for having made the time to accompany your husband to this occasion. I am also very thankful to Universal Music, Mr. Rajat Kakkar and Mr. Shivaji Gupta and the whole team of Universal for having been so committed to this audio project, and hopefully as partners in this project we will be smiling at the end of the day. Rohan has been a very talented musician since a long time. He's at the age of 16 he could play Beethoven and Mozart, and his voice is also good, and I really couldn't ignore his talent. So I did have to support him, and hopefully from here on you will support him and take him to greater heights. Thank you very much. I would also like to add at this occasion how much of support that I've had from my father and my mother in this album. Every single part of Dolna, starting from the music, starting way back to the conceptualization, to the music, to the lyrics, to the video, to everything down to this occasion today. I give full credit for that to my father. And if not for him, I wouldn't have had this opportunity to put myself at this stage standing here today. So a big round for my dad and for my mom. Thank you. Excuse me. Cassette, please. Thakkar Sahib, तेरा आवाज आ यार. Thakkar Sahib. हाँ. Thank you so much. Honorable.
नहीं। तुझको मैं रुसवा करूं ये मुझसे हो सकता नहीं। अश्क पलकों में छुपे हैं खुद के रो सकता नहीं। मैं गहरा अके दिलदार, मैं गहरा अके दिलदार, कदे नहीं बोलना 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 ढोलना दे ढोलना ढोलना दे ढोलना ढोलना दे ढोलना। जी मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक से कंपोजर लेवल वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है और फिर बॉम्बे आने के बाद मेरे गुरुजी जो यहाँ मौजूद हैं श्री गौतम मुखर्जी जी फ्रॉम लेजेंडरी हिम्मत कुमार फैमिली, उनसे शिक्षा ली मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और उसके पश्चात ही एल्बम रिलीज़ हुई है। तो कैसे सूझी ये एल्बम कैसे तो हाउ डिड दिस फाइनली ढोलना हैपन, ये शुरुआत कैसे हुई? ढोलना की शुरुआत हुई मेरे सीनियर ईयर हाई स्कूल में, जब मेरा गाना पकड़ा, लोगों को पसंद आने लगा और लोगों ने बहुत एनकरेज किया। मैं बॉम्बे आया फिर पापा के साथ और हम दोनों ने ही जगह जगह गए, हम जो हर स्ट्रगलिंग सिंगर करता है और करना भी चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास गए, उनको अपनी आवाज़ सुनाई और बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि लोगों को आवाज़ सुनाने का बेस्ट तरीका मेरे लिए था एल्बम निकालना, क्योंकि मैं यहाँ 6 महीने नहीं रहता और मैं इंडियन आइडल में पार्ट नहीं ले सकता, मैं सारेगामा में पार्ट नहीं ले सकता, अपने आप को टीवी शोज़ के माध्यम से ऊपर नहीं ला सकता। तो मेरे लिए यही एक तरीका था लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, और इसलिए ढोलना पैदा हुआ तब से। और लगभग 1 साल रिकॉर्डिंग करी हमने, मास्टरिंग करी, वीडियो शूट करे और अब इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। टीवी शोज में आप भाग नहीं ले सकते, ऐसा आपने क्यों कहा? आपको अपने पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है? मेरे को अपने पे बहुत विश्वास है, मैं अपने आप की गायकी पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 6-6, 8-8 महीने बिताने के लिए समय नहीं था, क्योंकि मैं सीधा 12th पास करके मेरी एडमिशन एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में हो गई फ्लोरिडा में, और बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है वो, और मैं अपनी एजुकेशन किसी हाल में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डिग्री हासिल करूँ। मेरे को बहुत पसंद है मेरी डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को नसीब ऐसा मिलता है कि वो ऐसी डिग्री परस्यू कर पाते हैं, और इसीलिए मेरे पास इतना समय इंडिया में बिताने के लिए नहीं है कि मैं ऐसे शो में पार्ट ले सकूं, क्योंकि इन शोज़ से जो प्लेटफॉर्म नए सिंगर्स को मिल रहा है वो ट्रिमेंडस है, और अनफॉर्चुनेटली मैं इसका लाभ नहीं उठा पाता। ये एल्बम के बारे में कुछ बताइए, कितने गाने हैं, क्या है इसमें, कहाँ लोकेशंस है? इस एल्बम में 10 गाने हैं, 10 ट्रैक हैं, 8 मेरे गाने हैं और 2 रीमिक्स हैं, जिसमें से एक रीमिक्स किशोरदा के गाने का, और 2 वीडियो शूट हुए हैं, ढोलना वे और लचक लचक। ये दोनों वीडियो मॉरिशस में शूट हुए हैं और बहुत खूबसूरत लोकेशन थी मॉरिशस की, और दोनों वीडियो बहुत ही अच्छे बन के, आपने देखा था, बहुत अच्छे बन के आए हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो तो फाइनली हो गया, अब क्या एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से कहाँ जाने का है? मेरा मेन टारगेट है कि मैं बॉलीवुड में आऊँ, कि मैं हीरो के लिए अपनी आवाज़ दूँ, प्लेबैक दूँ, और मैं जानता हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट लाइन है, बहुत मुश्किल से लोगों को चांस मिलता है इस इंडस्ट्री में। इस एल्बम के माध्यम से मैं अपने आप को पब्लिक के सामने पेश करना चाहता हूँ, और उसके रिस्पांस के बेसिस पे अगर लोग मेरी आवाज़ सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं फिर प्लेबैक में जाऊँगा, और साथ ही साथ मैं अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद फिर म्यूज़िक, क्योंकि मेरी पहली लव है, मैं आके गाना गाऊँगा बॉम्बे में। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने बताया कि इस एल्बम में 10 गाने हैं, जिनमें से 8 गाने आपके हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। और वो मेरा गाना मनपसंद इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो मेरा एक गाना सैड है, उसके अंदर जुदाई की फीलिंग जो है, हीर रांझा टाइप की, उसके अंदर लिरिक्स थोड़े बहुत पंजाबी हैं। पंजाबी हमने लैंग्वेज इसलिए चूज़ करी है क्योंकि पंजाबी जो भाषा है वो बहुत इमोशनल भाषा है, और उसमें इमोशन सबसे ज़्यादा दर्द बाहर आता है, इसलिए वो मेरा गाना सबसे फेवरेट है। इमोशनल वाइज, धुन वाइज, बीट वाइज, हर वाइज वो मेरा फेवरेट गाना है। 2 लाइन आपसे सुनना चाहूँगा जी। ढोलना वे ढोलना, ढोलना वे ढोलना, रखियां दे आसे पासे, रखियां दे आसे पासे, बोल पावे बोलना, ढोलना वे ढोलना, ढोलना वे ढोलना। थैंक यू सो मच। सेंटर आएगा।
बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, इस एल्बम से पहले क्या करते थे? मैं 10-12 साल से हूँ मुंबई में। मेरे क्रेडिट पर बहुत सारी पंजाबी एल्बम्स हैं। पंजाबी फोक म्यूज़िक से बहुत अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ के साथ, अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ एल्बम्स रिलीज़ हुए हैं। चंद हिंदी कैसेट्स उदित जी के साथ, ऋचा शर्मा के साथ और बहुत सारे नए सिंगर्स के साथ। और दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। तो रोहन कैसे शुरुआत हुई, इस एल्बम को कैसे? Rohan's father happens to be my friend, and when he came with the idea of making an album of Rohan, और उन्होंने मुझे कहा कि इसको ज़रा सुनो, तो उस वक्त मुझे लगा कि करें या ना करें। लेकिन कुछ मेरे ट्रैक्स पे परफॉर्म करने के बाद मुझे लगा एक्सपेरिमेंटेशन इसके साथ हो सकता है, और उसके बाद वो जिस स्पैन में एल्बम बनी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता गया एंड एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। इस एल्बम में कोई लड़का लॉन्च हो रहा था, तो उसके लिए आपने क्या खास बात ध्यान में रखी म्यूजिक जानते संबंधित? कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एफर्ट ना लगे, उसका स्वाभाविक लगे। इट शुड साउंड नेचुरल, बेसुरा ना हो, सुर में हो, वो सुरीला है और उसका पहला अटेम्प्ट है। इसी हिसाब से मेरी नज़र में बहुत अच्छा है और वो बहुत ग्रो करेगा, बहुत आगे जाएगा। रोहन की आवाज़ के बारे में क्या सोचते हैं? रोहन की, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत डिफरेंट आवाज़ है, लेकिन सुरीली और कानों को मधुर लगने वाली आवाज़ है जिसमें टिकने की क्षमता है।